Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this video we'll cover reading synonyms and translation of page number 5 of the lesson button. Reading start करनी है आज. The point is, Norma Birkin, it's someone you've never seen in your life and never will see. Someone whose death you don't even have to know about. You still wouldn't push the button? Arthur stared at her, appalled. You mean you would? $50,000, Arthur. What has the amount? $50,000, Arthur, Norma interrupted. A chance to take that trip to Europe we've always talked about. Norma, no. A chance to buy that cottage on the island? Norma, no. His face was white. She shrugged. She shuddered. All right, take it easy, she said. Why are you getting so upset? It's only talk. After dinner, Arthur went into the living room. Before he left the table, he said, I'd rather not discuss it anymore, if you don't mind. Norma shrugged. Fine with me. She got up earlier than usual to make pancakes, eggs, and tea for Arthur's breakfast. What's the occasion? He asked with a smile. No occasion. Norma looked offended. I wanted to do it, that's all. Good, he said. I'm glad you did. She refilled his cup. Wanted to show you I'm not. She shrugged. Not what? Selfish. Did I say you were? Well, she gestured vaguely. Last night, Arthur didn't speak. All that talk about the button, Norma said. Norma said, I think you, misunderstood me. In what way? His voice was guarded. I think you felt, she gestured again, that I was only thinking of myself. Oh, I wasn't, Norma. Well, I wasn't when I talked about Europe, a cottage on the island. Norma, why are you getting so involved on this? I'm not involved at all, she drew in a shaking breath. I'm simply trying to indicate that. Now look at the synonyms of different words. First one is appall, that is shock, scare, astound, alarm, frighten और intimidate. उर्दू में इसका मतलब होता है दहशत ज़दा हो जाना या दहशत ज़दा होना. Next one is interrupt, that is disconnect, obstruct, discontinue, hinder, cut और intrude. उर्दू में इसका मतलब होता है कि किसी के काम में या किसी की बात में मुदाखलत करना या उसको रोक देना और अपनी बात शुरू कर देना. Shudder mean quiver, shake, shiver, tremble or quake. इसका मतलब है कांपना या किस खौफ की वजह से या किसी गैर मुतवक्को चीज़ की वजह से दहशत ज़दा हो जाना या डर जाना. नेक्स्ट इज़ offend, that is anger, displease, annoy, irritate और insult. इसका मतलब है किसी बात का बुरा मनाना या नाराज़ होना. Shrugged, that is jerk, tug, wriggle, wrench, fling or flop. इसका मतलब है कंधे उचकाना या किसी चीज़ के साथ बेजारी या लापरवाही का इजहार करना इशारे के ज़रिए. Gesture, that is expression, indication, signal, token, note or reminder. इसका मतलब है किसी किस्म का इशारा देना. Vague, that is unclear, indistinct, uncertain, unsure, hazy or blur. इसका मतलब है कि कोई चीज़ वाज़े ना हो या मुबहम चीज़ को कहते हैं. इसको गैर वाज़े भी कहा जा सकता है. Now the translation. The
पॉइंट इज नॉर्मा ब्रोक इन, नॉर्मा ने मुदाखलत करते हुए कहा, बात यह है कि if it's someone you have never seen in your life and never will see, someone whose death you don't even have to know about, you still wouldn't push the button. क्या अगर कोई ऐसा हो जिसको आपने ज़िंदगी में ना कभी देखा हो और ना कभी देखेंगे, और कोई ऐसा जिसकी मौत से आपको जिसकी मौत के बारे में आपको जानना भी नहीं होगा या जिसकी मौत का आपको पता भी नहीं चलेगा, तो फिर भी आप समझते हैं कि फिर भी आप बटन नहीं दबाएंगे? आर्थर स्टेयर्ड एट हर appalled. आर्थर दहशतज़दा होकर उसे घूरने लगा. यू मीन यू वुड? आपका मतलब है कि आप दबाएंगी या आप दबा देंगी या आप ऐसा कर देंगी? $50,000 आर्थर. $50,000 आर्थर. What has the amount? इस रकम का क्या? $50,000 आर्थर. और $50,000 आर्थर. नॉर्मा इंटरप्टेड. नॉर्मा ने मुदाखलत करते हुए कहा, A chance to take that trip to Europe we have always talked about. ये एक मौका है, ये यूरोप की ट्रिप का, यूरोप के दौरे का या यूरोप की सैर का मौका है जिसके मुतालिक हमने हमेशा बात की है. नॉर्मा नो, नॉर्मा नहीं. A chance to buy that cottage on the island. जजीरे पर एक घर खरीदने का मौका है. नॉर्मा नो, नॉर्मा नहीं. His face was white. उसका रंग फक हो गया या उसका रंग पीला पड़ गया, या उसका चेहरा जर्द हो गया, यूँ भी हम कह सकते हैं. उसका चेहरा जर्द हो गया या उसका रंग फक हो गया. शी शडर्ड. वो कांपने लगी, यानी कि उसको जब उसने देखा कि उसके ऊपर इतना ज़्यादा असर हो रहा है तो वो कांपने लगी. ऑल राइट, टेक इट ईजी, शी सेड. इस को इतना अपने सर पे ना सवार करें, उसने कहा. वाई आर यू गेटिंग सो अपसेट? आप इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे हैं? इट्स ओनली टॉक. ये तो सिर्फ बात है, ये सिर्फ बातें हैं. आफ्टर डिनर, यानी कि अभी तो हम सिर्फ बात ही कर रहे हैं, तो आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? आफ्टर डिनर के रात के खाने के बाद आर्थर वेंट इनटू द लिविंग रूम. आर्थर कमरे में चला गया. बिफोर ही लेफ्ट द टेबल ही सेड, I'd rather not discuss it anymore if you don't mind. उसने मेज़ से उठने से पहले कहा कि मैं अब इसको मज़ीद इस पर बहस नहीं करना चाहता, अगर आपको नागवार ना गुजरे, यानी कि अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं अब इसके मुतालिक बात नहीं करना चाहता. नॉर्मा श्राग. नॉर्मा ने कंधे उचकाए. फाइन विद मी, ठीक है, मुझे मंजूर है, या मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे मंजूर है. She got up earlier than usual to make pancakes, eggs and tea for Arthur's breakfast. वो आर्थर के लिए नाश्ते में पैनकेक, अंडे और चाय बनाने के लिए मामूल से पहले उठ गई. ठीक है. व्हाट्स द ओकेजन? व्हाट्स द ओकेजन? क्या कोई ख़ास मौका है, या आज कोई ख़ास मौका है, या आज क्या ख़ास बात है? ही आस्क्ड विद अ स्माइल. उसने मुस्कुराते हुए पूछा. उसने इस वजह से कहा था कि जब उसने देखा कि एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट जो कि ख़ास मौके पे बनता है वो बनाया जा रहा है, तो फिर उसने मुस्कुराते हुए उससे पूछा कि क्या कोई ख़ास मौका है, या कोई जो इतना एहतमाम हो रहा है नाश्ते का, इतने एहतमाम से नाश्ता बनाया जा रहा है. तो इस तरह से उसने मुस्कुराते हुए पूछा कि आज कोई ख़ास मौका है. उसे लगा कि वो एहतमाम करिए या पहले से वो उसने ज़्यादा अच्छे तरीके से खाना नाश्ता वगैरह बनाया है. तो नो ओकेजन, कोई ख़ास मौका नहीं है. नॉर्मा लुक्ड ऑफेंडेड. उसको लगा कि उसने तंज किया है, या उसे ये लगा कि उसको ये कहा जा रहा है कि कभी कभी ही ये चीज़ें बनती हैं, इतना तमाम ये अंडे ब्रेड वगैरह ये सब चीज़ें कभी कभी बनती हैं, या फिर ये ख़ास मौके की चीज़ें और वो कुछ एक्स्ट्रा कर रही है. तो इस वजह से उसको ज़रा सा बुरा लगा, ये बात उसको बुरी लगी. तो इस वजह से वो नाराज़ या नाराज़ नज़र आने लगी. आई वॉन्टेड टू डू इट, दैट्स ऑल. मैं ये करना चाहती थी और बस यही बात है.
गुड ही सेड, अच्छी बात है, उसने कहा। आई एम ग्लैड यू डिड, मुझे खुशी है कि आपने ऐसा किया, या आपने ये सब तमाम किया तो मुझे इस बात की खुशी है। शी रिफिल्ड हिज कप, उसने अपना कप दोबारा भरा, उसने उसका कप दोबारा भरा। वांटेड टू शो यू आई एम नॉट, मैं आपको बताना चाहती थी कि मैं नहीं हूँ। शी श्रग्ड, उसने कंधे उचकाते हुए कहा। आगे डैश है, इसका मतलब है कि उसने ये नहीं बताया कि वो क्या नहीं है, तो नॉट व्हाट, क्या नहीं है। सेल्फिश, खुदगर्ज। डिड आई से यू वर, क्या मैंने कहा है कि आप हैं खुदगर्ज। वेल शी जेस्चर्ड वेगली लास्ट नाइट, हाँ उसने कहा कि उसने हल्का सा इशारा देते हुए कहा, या मुबहम सा इशारा देते हुए कहा कि कल रात। आर्थर डिडंट स्पीक, ये जो लास्ट नाइट है ना, ये उसका इशारा है कि उसने पिछली रात को इशारा, रात की तरफ इशारा दिया, या उसको कल रात की बातों की तरफ, पिछली रात की बातों की तरफ उसने इशारा किया। आर्थर डिडंट स्पीक, आर्थर कुछ नहीं बोला। ऑल दैट टॉक अबाउट द बटन, नॉर्मा सेड, नॉर्मा ने कहा कि बटन के मुतालिक वो सब बातें। आई थिंक यू वेल मिसअंडरस्टूड मी, मेरा ख्याल है कि उन बातों का हवाला देके वो कह रही है कि मेरा ख्याल है कि आपने उस वक़्त मुझे गलत समझा था, मेरा ख्याल है कि आपने मुझे गलत समझा। इन व्हाट वे, किस तरीके से या कैसे। His voice was guarded, उसका लहजा मोहतात था। I think you felt, मेरा ख्याल है कि आपको लगा। She gestured again, उसने दोबारा से इशारा दिया। That I was only thinking of myself, कि मैं सिर्फ अपने मुतालिक ही सोच रही हूँ। यानी कि उसने कहा कि मैं सिर्फ अपने मुतालिक ही सोच रही हूँ, तो उसने ये इशारा दिया। अब ये जो है वो हम लोग जब उर्दू में उसको बोलते हैं, उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं, तो हम जब पास्ट पहले होता है, यानी कि हम ये भी कहते हैं कि उसको ऐसा लगा कि या उसने कहा, और आगे हम लोग प्रेजेंट लगा देते हैं, ठीक है, कि मैं अपने मुतालिक सोच रही हूँ या वो ऐसा कर रहा है। लेकिन जब हम लोग इंग्लिश सेंटेंस लिखते हैं, तो अगर हम लोग पहले जो है वो वर्ब पास्ट यूज़ कर रहे हैं, तो आगे भी हमने पास्ट ही यूज़ करना है, इसको हम इज़ नहीं कहेंगे कभी भी फिर, क्योंकि ये मिस्टेक्स अक्सर हो जाती हैं कि पहले अगर हमने सेड के साथ शुरू किया है, तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भी रूल है कि अगर हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट है, तो ये आगे भी जो है ये पास्ट ही होगा, ठीक है। अगले वाले भी जितने वर्ब्स आएंगे उनको हम पास्ट में लिखेंगे, और अगर ऑलरेडी पास्ट है तो वो फिर परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। ओ का मतलब है कि उसका ऐसा ख्याल नहीं था, इस वजह से उसने सिर्फ ओ ही कहा उसको। आई वॉजेंट, मैं खुदगर्जी नहीं कर रही थी, या मैं ऐसी नहीं थी, या मेरा ये मतलब नहीं था। नॉमा, उसने सिर्फ ये आगे डैश है, इसका मतलब है उसने अपना सेंटेंस कंप्लीट नहीं किया। वेल आई वॉजेंट, हाँ मैं ऐसी नहीं हूँ, या मैं खुदगर्ज नहीं हूँ। When I talked about Europe, a cottage on the island, मैंने खुदगर्जी की बातें नहीं की जब मैंने यूरोप के मुतालिक बात की, और मैंने जजीरे पर घर लेने की बात की। नॉमा, why are we getting so involved in this, हम इसमें नॉमा हम इसमें इतना ज़्यादा उलझते क्यों जा रहे हैं, या नॉमा हम इसमें इतना ज़्यादा क्यों उलझ रहे हैं, या इसमें हम इतना ज़्यादा इसके मुतालिक क्यों सोच रहे हैं। आई एम नॉट इन्वॉल्व, मैं तो इसमें बिल्कुल नहीं उलझ रही। शी चू इन अ शेकिंग ब्रेथ, उसने एक लरसती हुई सांस ली। इसका मतलब ये है कि उसने रुंधी आवाज़ में या लरसते हुए लहजे में कहा, आई एम सिंपली ट्राइंग टू इंडिकेट दैट, मैं सिर्फ ये जाहिर करने की कोशिश कर रही थी, या मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही थी। और आगे फिर डैश है, इसका मतलब है कि उसने अपना सेंटेंस कंप्लीट नहीं किया। मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट पेज जो है वो फिर करेंगे बाद में।